हेलो, गुड आफ्टरनून। आज संडे 13 अप्रैल को हम लोग याकूब एडवोकेट, माई सेल्फ याकूब एडवोकेट और हमारे मुसाब साहब एडवोकेट साहब और राज साहब एडवोकेट साहब, हम तीनों डिस्कशन के लिए मुसाब साहब का ऑफिस पर जमा हुए। बहुत सारे चीज़ें डिस्कशन हुए, बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस हुए। और अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के केसेस और अपने क्रिमिनल केसेस, तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग डिस्कशन करें। और तकरीबन चीज़ें जो डिस्कशन करें वो मुसाब साहब भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह। मुसाब साहब से सुनना एकदम प्रैक्टिकल और दिखेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट जो भी बोलेंगे मुसाब साहब बोलेंगे। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఇస్ రాజేంద్ర, హైకోర్టు అడ్వకేట్. సో నేను ఈరోజు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే తెలుగులో మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే చాలా మంది మిత్రులు తెలుగులో ఉన్నారు, చాలా మంది మిత్రులు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, స్నేహితులు ఉన్నారు. సో ఈరోజు మేము న్యాయ వ్యవస్థ, రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు, లోకల్లో ఉన్నటువంటి లోకల్ కోర్టు కావచ్చు, ఈరోజు మేము హైకోర్టు అడ్వకేట్గా నేను రాజేందర్ పక్కన మా గౌరవనీయులు ముసాబ్ భాయ్, మా మిత్రుడు యా. యాకూబ్ భాయ్, మా సమక్షంలో ఈరోజు ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఓ చిన్నపాటి మీటింగు ఈ హైకోర్టు ఆఫీస్ నార్సింగిలో పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో దీనిలో మేము ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుందంటే న్యాయ వ్యవస్థ మీద ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అవసరం. ఈరోజు మనం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వేసే ప్రతి అడుగు, మాట్లాడే ప్రతి మాట చట్టానికి, న్యాయానికి ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి అది ప్రజలకి, ఈ సొసైటీకి ప్రతి విషయంలో అది న్యాయమైన అవగాహన అవసరం. దానికి మేము హైకోర్టు న్యాయవాదులుగా మేము అది చాలా పెద్ద బృందం ఉంది. హైకోర్టు బృందం ఉంది, సుప్రీంకోర్టు బృందం ఉంది, మున్సిపల్ కోర్టు బృందం ఉంది. ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టులకి మా యొక్క లీగల్ టీమ్స్ ఎక్కడక్కడే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు 24 గంటలు, ఏ క్షణం రాత్రి 12 గంటలకు ఫోన్ చేసినా మా న్యాయ వ్యవస్థ బృందం ఎక్కడ ఫోన్ చేసినా ఏ కోర్టుకి అందుబాటులో ఉండే ఒక న్యాయాన్ని ఓ చట్టబద్ధంగా ప్రజల వద్దకి, సొసైటీకి అందించే ఒక మంచి సహోద్దేశంతో నడుపుతున్నటువంటి మా ముసాబ్ బృందం ఖచ్చితంగా అందరికీ న్యాయాన్ని అందించే, కొంత ప్రజలకి ఒక వెసులుబాటుని కలిగించే మంచి దృక్కోణంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నటువంటి ఒక మంచి న్యాయవాద బృందం. సో ఏ కేసులైనా, ఎటువంటి కక్షదారులైనా చట్టపరంగా ఎదుర్కోవడానికి, చట్టపరంగా మీకు కావాల్సిన సలహాలు, సూచనలు, అది హైకోర్టా, సుప్రీంకోర్టా, హిందీ కోర్టులా అనేది ప్రతిదీ కూడా మేము మా సలహాలు, సూచనలు తప్పకుండా మీరు ఎల్లవేళలా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ కావచ్చు. మాకు హైదరాబాద్లో అన్ని జిల్లాలలో కూడా మా టీం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది మీకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, మరి మీకు ఈ హైకోర్టులో మేము గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ముసాబ్ సాబ్ మేము అందరం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు అనేక రకమైన కేసులను మేము చూస్తూ ఉన్నాం, చేస్తూ ఉన్నాం, సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తూ ఉన్నాం. సో ఈ అన్ని విషయాలు మేము చెప్పడం కంటే మా ముసాబ్ సాబ్ ఇంకా వివరంగా, సవివరంగా చెప్పడానికి దానికి అవకాశం ఇస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా మిత్రులకందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, Raj bhai. Thank you very much for your time and explanation. చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. ఇంకా మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट. याकूब भाई, राज भाई, दोनों मिलकर जो मेरे को पॉइंट्स बोले सो छोटा नोट डाउन कर लिया हमने. तो उसमें से आई विल बिगिन एंड देन वकालतनामा, मेमो ऑफ अपीयरेंस एंड 317 वो भी बताएंगे. फिर एक्नॉलेजमेंट, एनवेलप, लेटर हेड, वो स्टेशनरी के बारे में. राइट साइड कैप्स के नीचे तो एक ये छोटा सा फर्स्ट वकालत इंट्रोडक्शन सेशन के जैसा ये जो है रहेगा. इसमें फर्स्ट है
एक मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एज एन एडवोकेट। अब जैसा कोई मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो स्टार्टिंग में स्टडीज के टाइम पे डेड बॉडीज को कट करते, बाद में हाथ धोते, दस्ताने यूज करते, बाद में पेशेंट्स को हैंडल करने का रहता है इंटर्नशिप में। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्लाइंट आएगा, मेरे को पेट में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, क्या उसका ट्रीटमेंट करना हो। तो पहले आप देख के थोड़ा काम, थोड़ा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा पैसिफाई होना, थोड़ा उसका बुखार दर्द कम हो जाना है, ऐसा आपका बात करने का अंदाज और तरीका रहने का रहता। सिमिलरली जब आप वकालत की फील्ड में आना चाह रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं या फिर बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसा कि हमारे याकूब भाई जिक्र कर रहे थे, एक मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एंड फ्रॉम द हार्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड जैसा राज भाई बोले कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ द जज। आपका प्राइमरी काम ये है कि क्लाइंट जो 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा कि सिचुएशन में ये हुआ था फिर ये हुआ था, वो you should be able to convert it into sections and then do the drafting, filing, argument in front of the judge. You should be able to convey that the client has been suffering from this problem and the client has is praying for such and such benefit कि हमको ये चाहिए, हमको पानी का कनेक्शन चाहिए, वाटर कनेक्शन चाहिए, या खेत पे से रोड चले गई, हमको कंपनसेशन नहीं मिला, या सर्वे करना है, या डिमार्केशन करना है, बट लेटेस्ट पासबुक में एंट्रीज कराना है, पट्टा पहानी में कुछ एरर्स है उसको रेक्टिफाई करना है, या जो है कोई डिपार्टमेंट वाला हरास कर रहा है आपको, दिन में या रात में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो हरासमेंट के खिलाफ आप रिट डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए। सो राज भाई says that you have to, when the client comes, you have to convert or classify the meeting into two parts. What are the problems being faced by the petitioner or the client or the respondent, and what are the solutions he wants? Problem, solution, affidavit, prayer, main prayer, interim prayer. तो इस तरीके से अगर क्लासीफाई करते हुए आप एक मेंटालिटी, आपका थिंकिंग पैटर्न को इस फॉर्म में अगर करें, तो वो बोलते रहेंगे मैं गया था, फिर मैं घर को जाके लाइट ऑन करा, उसके बाद में खाना खाया, उसके बाद में पानी पिया। तो दीज आर ऑल नॉट रेलेवेंट फैक्ट्स टू द केस, बट व्हेन द क्लाइंट स्पीक्स वो पूरा स्टोरी बोलता रहता है आपको। Story in the sense, I am telling it for the sake of convenience. We will take it as a fact. Client हमको जो बोला वो तो सच मानेंगे हम। बट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग में 2-3 वर्ड्स यूज करता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ, डोंट माइंड। तो क्लाइंट जो अपने को बोल रहा है उसको स्टोरी बोलेंगे अपन, स्टोरी को एफिडेविट की शक्ल में लिख रहे हो। फिर जो क्या हो गया स्टोरी, हाँ, एडवोकेट्स में अब जैसा एक एडवोकेट है, उनके पास क्लाइंट आए, क्लाइंट आके वकालतनामा साइन करे और उन्होंने दूसरे उनके जूनियर को आर्ग्यूमेंट के लिए भेजे, तो अपन जो एडवोकेट के पास क्लाइंट फीस दिया उसको सरपंच एडवोकेट बोलेंगे, और जो एडवोकेट आर्ग्यूमेंट के लिए गया उसको एम्प्लॉई एडवोकेट, वर्कर एडवोकेट, और इफ वी डोंट फील सो बैड, लेबर एडवोकेट बोल के फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन विद इन द टीम बोल सकते हैं। पर जैसा मैं हूँ, आई वर्क एज ए लेबर एडवोकेट फॉर माई उस्ताद हु इज प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। उनको हाई कोर्ट में सिंपल रूटीन वर्क है, रिट पिटिशन है, तो आई गो एज ए लेबर एडवोकेट एंड आई टेक नॉमिनल मेहनताना फ्रॉम हिम, and then whenever I teach people, I say that for the coming 5 years you have to argue for me, per argument 500 rupees I will give you। ट्रायल कोर्ट रहने दो, हाई कोर्ट रहने दो, सुप्रीम कोर्ट रहने दो, सुप्रीम कोर्ट को आप जाके आने का खर्चा हो रहा होगा 20,000, बट फॉर द आर्ग्यूमेंट आई बी पेइंग यू 500 रुपीज। आपको ये चीज एग्री है तो आइए, आई एम इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट विद राज भाई एंड याकूब भाई, आई एम इन नारसिंगी विद प्रशांत भाई। आप टाइम पिक करिए, आइए, सीखिए, आर्ग्यूमेंट, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, पूरा जो है आपको सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन वाज about mental preparation. Okay, you have to be able to convert or classify the client's issues into problems, affidavit, and solutions and prayer.
ऐसा आपको माइंड चलता रहना फ्रॉम डे वन ऑफ स्टडिंग एडवोकेसी, फ्रॉम डे वन ऑफ प्रैक्टिस। ये आपका पहला चैप्टर था। देन कमिंग टू सरपंच एडवोकेट, देर इज नो लीगल ऑफिशियल पोस्ट पोजीशन और रिटर्न डिमार्केशन अबाउट सरपंच एडवोकेट। इट माइट बी पॉसिबली आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, बट सरपंच एडवोकेट या मुखिया एडवोकेट विल, फॉर द ईज ऑफ डिस्कशन हम वो एडवोकेट को बोल रहे हैं जिसके अक्रॉस द टेबल क्लाइंट आके बैठ रहा और उसको वकालतनामा साइन करके दे रहा एंड उसको फीस दे रहा एंड डॉक्यूमेंट्स दे रहा। आफ्टर दैट द सरपंच एडवोकेट इन मेनी सिनेरियोज ही हिमसेल्फ कैन गो एंड डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और ही में सेंड हिज जूनियर्स। तो ये हो गया सरपंच एडवोकेट। यूजुअली वो सीनियर एडवोकेट्स रहते हैं, ज़्यादा लर्नेड रहते हैं और फॉलो अप करते रहना पड़ता है उनको क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट विल नेवर कॉल द ड्राफ्टिंग एडवोकेट और फाइलिंग एडवोकेट और आर्ग्यूइंग एडवोकेट एंड आस्क व्हाट हैज हैपेंड इन माय डेट। ही विल आस्क द सरपंच एडवोकेट। सरपंच एडवोकेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ज़्यादा रहता, ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द क्लाइंट कि भाई ये तारीख को ये हुआ था, ये तारीख को ये हुआ। Then he may record the audio and then type for the client. He may take photographs of the documents, PDF में convert करते, कभी scanner से convert करते। उसके बाद whenever the implementing advocate or labor advocate brings the order to the table of the sarpanch advocate, he calls the client and gives the order to him. And if there is any fees due, prepaid, postpaid, that can be evened out. Usually, under normal circumstances, the sarpanch advocate does not visit the police station for explaining things to the department. He does not represent in the GST office, income tax office, and GHMC, HMDA, RERA, MRO, SRO. Usually, he does not visit. His juniors may visit on his behalf. He may consult on Zoom, Meets, or physically for some extra fees. Then his main talent is he should be able to listen to the 3 hour story. We'll add up- yeah. So his main skill is he should be able to listen to the client's 3 hour story and convert it into 2 to 3 pages with the sections. Of the, he should be able to convert story of the client into sections and affidavit and prayer. ये उनका मेन टैलेंट और स्किल है। So if you are wanting to become a sarpanch advocate, you must try to inculcate this ability. Convert the story into sections, sections into case draft, and then able to draft the case. Then you have to argue, and you must have vast knowledge and information about how the constitution works, how the BNSS and the new Indian Evidence Act work, how the judiciary functions, how the judge will think before dictating the order, what are the sections depending on he may decide yes or no, what are the evidence depending on which he will come to yes or no, whether this evidence will stand the test of cross-examination, whether these witnesses will be able to do the chief examination. Okay. Such skills and responsibilities come on the Sarpanch advocate. For the sake of explaining, we are telling about we are using the word labor advocate, but he is the implementing advocate. He is the one who is doing the day-to-day work, so that the Sarpanch advocate can focus more on research and core data, decision making, and other things. So drafting, for the first time when you are drafting, it may usually take you between 1 to 2 days. If you are doing the first drafting of your life of a case, you are doing less than that, salute to you. Because पहली बार जब आप ड्राफ्ट करते हैं 1 दिन लगता है, 2 भी दिन लगते हैं, एडवाइस लेने का रहता है, वैसा रहता है। सेकेंड थर्ड ड्राफ्टिंग में आपका टाइम कम हो जाता, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स। आइडियल आज मैं जो पर्सनली
पहचान तो सेकंड जनरेशनल ड्राफ्टर्स है इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट, वो लोग 10 मिनट में कर रहे हैं रिट पिटिशन की ड्राफ्टिंग। सो टुडे इफ यू आर स्टार्टिंग इट एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द ड्राफ्ट इन 2 hours, don't take it on your heart, don't take it on your head. Today is the first draft which you are doing. Slowly, slowly your time will come down. Then you will have to go for filing. Filing के लिए you must make the Xerox copies, 2 for the judge, 1 for the GPPP, 1 for the other side, 1 for office copy. If you want to give the papers to the client, you can make a client set also. Here you can have something to put the holes. Like this is one. I'm not marketing it or something, but I found it to be very useful. This is by Kangaroo Company. You can put the case file. Put the case file here. Then you put the little holes, and then you get a hole in which you can put the thread. You get a hole here. And you get a hole, you can put a thread, and you can fold it and file it in the honorable courts. My greetings, how are you? फाइलिंग का प्रोसेस में हम लोग है। Then, after the filing is done, depending on how much workload is there in the court, you will get a date. You may get next day, you may get in the week, in the month, depending on how is the roster of that court. If you are going for high court with a writ petition, usually if your file is not returned or rejected because of errors, usually on the second working day or the third working day, you will get the first argument. But if it is a civil appeal, criminal appeal, CCCA, in such a scenario, the date may be given a little bit later on. Similarly, for writ appeals, a longer date may be given because in a writ petition, you are asking for your fundamental rights. So, High Court, the main purpose of establishing High Court is to so that the fundamental rights are given to the people. If it is being hampered, it may be checked why it is being hampered and give the fundamental rights as soon as possible. Then once the order is passed or date is given, the labor advocate is supposed to report to the Sarpanch advocate. And then if the order is passed, he has to go to the section and take out the order and bring and give it to the Sarpanch advocate. The client and labor advocate usually will not have any interaction between each other. The interaction will be between client and Sarpanch advocate, and the Sarpanch advocate will delegate work to the labor advocate. And there are some off the book expenses which may be happening in courts, like some Xeroxes and other things in filing sections, etc. So for this, we will have to discuss with some other senior advocate in person so that he can explain about the paper costs and Xerox and other things. The timeline. Yeah, the average timeline. Average timeline in high court cases and trial court cases. Usually, if the advocate and the petitioner and respondent do not make extraordinary effort, नॉर्मल तरीके से अगर आप लेंगे तो 3 से 5 साल में हाई कोर्ट का केस शुरू होके खत्म होने के चांसेस है। और ट्रायल कोर्ट में आप लेंगे तो 5 to 7 years एवरेज टाइम लेने के चांसेस है। There are various things which can be done to prepone it. Like आप एडवांसमेंट पिटिशन डाल सकते हैं, आप जज साहब के पास मॉर्निंग 10:30 को जाके मेंशनिंग कर सकते हैं, और देर आर सच वेज। हाँ, what are the cases which are common, more common these days? आजकल और in the coming days साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जा रहा है। उसके बाद चेक बाउंस केसेस है, उसके बाद फैमिली केसेस है, इसके बाद थोड़ा बहुत किराएदार मकानदार के।
ये 4 केसेस मोस्ट कॉमन है। अगर किसी को नंबर ऑफ केसेस पे फोकस करना है तो दे विल हैव टू गो टू द ट्रायल कोर्ट। आपको लॉट ऑफ केसेस करना है तो इफ आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि थोड़े से केसेस आप अच्छे से हैंडल करके आपकी वकालत चला सकते हैं, देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस विल बी मोर। There is a small question. Valuable time between 2 p.m. to 3 p.m. on Sundays only. Yes, yes, there's something. So, where was no, uh, लिमिटेड केसेस। लिमिटेड केसेस अगर आपको हैंडल करना है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस। अगर आपको यू वांट टू डू मास एडवोकेसी, लॉट ऑफ केसेस शुड बी देयर, my office should be full, my files rack should be full, daily I should have 5 arguments, you go to trial court। ट्रायल कोर्ट में you will get a lot of क्या बोलते हैं बल्क केसेस, नंबर ऑफ केसेस। देन वी विल गो टू ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या है बोला तो क्लाइंट आपको 3 घंटे की स्टोरी जो बोला उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। आई विल शेयर द स्क्रीन और एक चीज की ड्राफ्टिंग के लिए जाएंगे। शेयर स्क्रीन। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? हाँ, तो अभी अपन जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, आई एम नॉट मार्केटिंग इट और एनीथिंग, बट मेरे को ये ठीक लगा। देर आर अ लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर एज वेल इन द मार्केट। तो द मेन थिंग विच यूल हैव टू डू विथ योर ओन माइंड, तो यहाँ पे अपन जाएंगे कहाँ पे वो हाँ, we'll download it from the WhatsApp लेटेस्ट में जो मैं करा था। प्लीज सॉरी। तो ये जो वर्जन 2 है इसमें प्री रीड पिटिशन, ड्राफ्टिंग से पहले प्री ड्राफ्ट कर लेना। जैसा पेंट मार रहे तो फर्स्ट कोटिंग करके सेकंड कोटिंग करते, वैसा जो है बिफोर द ड्राफ्ट एक प्री ड्राफ्ट बना के उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाना। यहाँ पे पिटिशनर का नाम अपन एक इमेजिनरी नाम वगैरह लिखे। हाउ डू यू गेट टू द पिटिशनर्स नाम? द क्लाइंट हैज टू गिव यू द पिटिशनर्स नेम, यू आर नॉट यूजिंग योर इमेजिनेशन हियर। यहाँ पे रिट पिटिशन की बात हो रही है। यहाँ पे इन दिस इमेजिनरी सिनेरियो कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो है नोटिस सेंड कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, तो रिट पिटिशन डाल रहे हैं। तो सबसे नीचे आपका जो ऑफिसर या लोग जो आके डिस्टर्ब कर रहे हैं एस्टेट ऑफिसर हो गए। यहाँ एस्टेट ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड, एस्टेट ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड और द हाईएस्ट अथॉरिटी इन दैट डिपार्टमेंट इन द कंट्री और स्टेट कौन है, यहाँ से यहाँ तक पूरे लोगों को रेस्पोंडेंट बनाना आइडियली। एस्टेट ऑफिसर रिपोर्ट करता है स्टेशन कमांडर, तो स्टेशन कमांडर विच एवर एरिया वहाँ का बोर्ड, उसके ऊपर कौन रहता, उसके वो ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड। उसके ऊपर कौन रहता, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया। ये पूरा रेस्पोंडेंट्स को आप एड्रेस विद पिन कोड लिखना। अगर पिन कोड नहीं मालूम है तो आप गूगल पे निकाल सकते हैं। अभी उसके बाद हो गया अफिडेविट। अफिडेविट यानी स्टोरी जो क्लाइंट आपको 3 घंटे बोला। और एफिडेविट शुड स्टार्ट विथ आई हम्बली सबमिट। ये कोर्ट का थोड़ा लैंग्वेज है, जैसा कोर्ट में आप बोल रहे जाके सेंटेंस इट इज लाइक दिस बोल के नहीं शुरू कर सकते। आई हम्बली सबमिट या आई रेस्पेक्टफुली सबमिट, ऐसे फॉर्मल टर्मिनोलॉजीज यूज करके उसके बाद आपका सेंटेंस बोल सकते हैं आप। आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ द प्लॉट,
I obtained construction permission. I humbly submit that I am peacefully residing. I submit that during brief visit of my relatives. I submit that जो है ऐसा हुआ था. I submit that ऐसा हुआ था. ये पूरा कहाँ से आया? The client told to you. उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसिव डेटा, अनवांटेड अननेसेसरी डेटा भी था. उसमें कुछ डेटा अगर मिस हो गया तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके क्लाइंट से निकाल रहे हो डेटा. वो डेटा को आप जो स्टोरी में इंग्लिश में लिख रहे, प्रॉपर ग्रामर, आई हम्बली सबमिट, ये हो गया आपका अफिडेविट. अफिडेविट के नीचे आपका क्लाइंट का सिग्नेचर रहना. उसके बाद मेन प्रेयर. ये प्रेयर आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि केस आप जीतेंगे या हारेंगे. तो यहाँ पे अपन लिखे हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू डू सो एंड सो. क्लाइंट को क्या रिलीफ होना. राज भाई बोले सो पॉइंट याद आया ना. एफिडेविट एंड प्रेयर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन. So, as per Rajbhai's method, you are supposed to give here what is the solution, what is the relief the client wants. तो अंडर आर्टिकल 300 है. अब यहाँ पे इस सिनेरियो अपन में ये आर्टिकल यूज करें, कुछ और यूज करो आप. मैंडेमस है, सर्श्योररी, जो 4 रिट्स है ना, उसमें से ये सिनेरियो में हमको ये चाहिए ऑफिसर से, इसीलिए मैंडेमस अपन डाले. उसके बाद फिलहाल इंटरिम प्रेयर, रिस्ट्रेन, रुकाओ, स्टॉप करो द रेस्पोंडेंट फ्रॉम टेकिंग फर्दर कोर्सिव एक्शंस. एडवोकेट्स कौन कौन है, ABCD बोल के आप जो है लिख दे रहे हैं. लिख के ये आपका बन गया रफ ड्राफ्ट. अब ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में जाने से पहले अपन यहाँ से क्या क्या कॉपी करना है. पहले पेटिशनर का नाम आएगा, तो पेटिशनर का अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे. Ctrl+C. सॉफ्टवेयर हो गया ये पेटिशनर्स नेम एंड एड्रेस. उसके बाद Alt टैब दबाए अपन वो इतने ओपन है. यहाँ से रेस्पोंडेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट ऑफिसर. Ctrl+C. सॉफ्टवेयर, ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में इट विल नॉट गिव यू द डेटा, इट विल ओनली गिव यू द फॉर्मेट. कि राइट को क्या आना है, लेफ्ट को बोल्ड इटैलिक्स क्या आना है, वो डेटा पूरा आप भरना रहता फ्रॉम योर माइंड, विच विल कम फ्रॉम द क्लाइंट स्टोरी. के बाद हो गया प्रेयर. इन एक्सरसाइज ऑफ सो एंड सो, ये Ctrl+C. जो है सॉफ्टवेयर में डाले मेन प्रेयर. उसके बाद अभी अपने को चाहिए इंटरिम प्रेयर. इंटरिम प्रेयर कॉपी कर लिया अपन, Ctrl+C. ये लेबर एडवोकेसी में आपको ड्राफ्टिंग का स्टेप चल रहा है. Ctrl+V. फर्स्ट पेटिशनर नेम अपन यहाँ पे लिखेंगे QERTY. फर्स्ट रेस्पोंडेंट नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया. Ctrl+C. Ctrl+V. डिपोनेंट्स वेरिफिकेशन. यहाँ पे कौन कसम खा के बोलेंगे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ. जो है डिपोनेंट क्वेरिटी है अपना, तो क्वेरिटी हैदराबाद है, सिकंदराबाद है. डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ फाइलिंग आज 13 है, 14 को हॉलीडे है, 15 को फाइल कर रहे हैं अपन. 15-4-2025. एडवोकेट के नाम WP क्रिएट बोलते बताया. क्रिएट बोलते इट विल गिव यू द फॉर्मेट. इसको आप Ctrl+S कर देना, सेव करके डेस्कटॉप पे डाले आप. डेस्कटॉप पे QWERTY-KS1 सेव. उसके बाद ओके बोले आप, तो ये फाइल हो गई क्वेरिटी. क्वेरिटी में WP नंबर आप फाइलिंग के बाद अलॉट होगा. ये चेकलिस्ट आ गया. ये चेकलिस्ट का फॉर्मेट सॉफ्टवेयर वाला बना के दे. उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल रनिंग इंडेक्स. इंडेक्स में मटेरियल पेपर्स, जो क्लाइंट आपको पेपर्स दिया सर्टिफाइड कॉपीज, वो अटैच करने का रहता है. इसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सर्विस, GP को PP को एक्सेप्ट देना. आप देखिए उनका सिग्नेचर और स्टैम्प लेना. उसके बाद हो गया कोर्ट फीस. पेटिशनर को 100, रेस्पोंडेंट को 30. ये है तो 10 रुपये. CC एप्लीकेशन के लिए 15 और वकालतनामा के ऊपर 105 रुपीज.
ये आज के कोर्ट फीसेस है, चेंज हो सकते हैं, आप चेक कर लेना। उसके बाद ये मेन रिपीटिशन, उसके बाद प्रेयर। ये प्रेयर कहाँ से आया? ये सॉफ्टवेयर डाल के नहीं दिया, प्रेयर आप खुद टाइप करे, उन्हें खाली कहाँ पे रखना प्रेयर, वो काम करता है। उसके बाद ये डॉकेट पेज, जो जो पेजेस में हाफ लिखा हुआ है उसको डॉकेट पेज बोलेंगे आप। उसके बाद ये हो गया एनेक्जर वन। एनेक्जर वन में क्या आना? क्लाइंट जो 3 आवर स्टोरी आपको बोला, वो शॉर्ट में थर्ड पर्सन के वर्जन में आना, द पिटिशनर आई हम्बली सबमिट जाके द पिटिशनर बोल के सेंटेंसेस आना। मैं वो बता रहा हूँ, अभी आजकल एआई का दौर है, तो अपन जो है ऐसा पूरा टाइप करने के बजाय अपन कॉपी कर लेंगे। अपन प्रेयर को भी कॉपी कर लिए, इंटरिम और मेन प्रेयर को, बट आइडियली यू आर सपोज टू कॉपी ओनली द अफिडेविट पार्ट। भी यहाँ पे अपन खोलेंगे शेखर परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, और उसके बाद और फ्यूचर में जो आते जाएंगे वो सब आप यूज कर सकते हैं। और इसमें अपन लिखेंगे री राइट दिस इन कंसाइज मैनर इन 3 points and begin each point with the phrase the petitioner submits। बोल के कंट्रोल भी कर देंगे, तो वो पूरे आपके क्लाइंट की स्टोरी को 3 पेजेस में ला लेंगे, 3 पॉइंट्स में ला लेंगे सब। अब उसको क्या है, आप क्रॉस चेक भी करना रहता, उन्हें आम को जाम बोल के कर दिया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल, सरपंच एडवोकेट एंड द लेबर एडवोकेट। यहाँ पे पेस्ट कर लिया, पर पेस्ट करने के बाद ये तीनों पॉइंट है एक ही बॉक्स में आ गए ना। तो यहाँ से अपन ये डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको अपन कंट्रोल एक्स बोलेंगे, कट कंट्रोल वी बोलेंगे। सेकंड पॉइंट नीचे आ गया, अभी ये थर्ड पॉइंट भी आना है, द पिटिशनर, ये हो गया कंट्रोल एक्स, ये हो गया कंट्रोल वी। और ये बोल्ड वगैरह जो है ना, ये बोल्ड ऐसा नहीं रहना, इसको अपन बोल्ड से हटा लेना। माउस और भाग रहा, बोर्ड से हटा दिया अपन, ठीक है। ये आपका बन गया एनेक्जर एंड एफिडेविट। ये कहाँ से आया? क्लाइंट आपको बोला सो स्टोरी को द पेटिशनर सबमिट्स बोल के थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन के जैसा टाइप करें आप। एफिडेविट में फर्स्ट पर्सन इंफॉर्मेशन के जैसा टाइप करने का है, आई बोल के। यहाँ पे द पेटिशनर उनो उनो इन्हें उन्हें बोले जैसा, तेलुगु में वाडू वाडू आईना आईना बोले जैसा। और उसके बाद उसको ये 2 एक्स्ट्रा डब्बे हैं, उसको डिलीट कर देंगे अपन। शिफ्ट सेल्स अप, ओके, एक्स्ट्रा के डब्बे डिलीट करने पड़ेंगे। वो वर्ड फॉर्मेटिंग की कमजोरी है अपनी। डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो, हाँ हो गया। अब उसके बाद एनेक्जर वन हो गया, फिर ये एफिडेविट। एफिडेविट में आप क्या करना है, आई क्वालिटी, ये पूरा डिलीट करके आप जो स्टोरी लिखे थे वो लिखना, आई सबमिट दैट, ये मैं कर दिया डिलीट। और आप जो क्लाइंट के लिए स्टोरी लिखे थे वो कहाँ है, प्री पिटिशन ड्राफ्ट यहाँ है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे एफिडेविट, कॉपी करेंगे, प्रेयर कॉपी नहीं करेंगे, क्यों, प्रेयर अलग जगह आएगा उसके बाद। हाँ अभी भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके एक साथ ही पेस्ट कर देंगे, ये सही है। कंट्रोल सी, केस वन, कंट्रोल वी। अब इसमें प्रेयर्स भी आ गया आपके। अब ये जो सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रेयर था उसको हटा दे सकते हैं आप, या रहने दे भी दे सकते हैं। हाँ, आपका प्रेयर उन्हें खुद टाइप नहीं करा, आप खुद प्रेयर टाइप करें, वो प्रेयर कौन से पेज पे कौन से डब्बे में आना वो कराओ सॉफ्टवेयर।
और एक हमारे शागिर्द है, वो मेरे शागिर्द है, वो और बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आपका प्रेयर आ गया, इधर इंटरिम प्रेयर आ गया। लास्ट पेज करेस्पॉन्ड्स बोल के जो लिखा हुआ है वो गैर जरूरी लिखा हुआ है, उसको डिलीट कर दिया करो। वेरिफिकेशन मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओरिजिनल अपेलेंट्स आईडी, वकालतनामा भी दे दिया उन्हें, वकालत का डॉकेट हो गया। ये जो है रेस्पोंडेंट एड्रेसेस है, ताकि कोर्ट की तरफ से नोटिसेस जाने के लिए और जो है कट करके उसको फाइलिंग से पहले एनवेलोप्स पे लगाने, ये आपका मेन प्रेयर आ गया डॉकेट की शक्ल में। इसको आप छोटा करके एक पेज में एडजस्ट करना, 1.5 पेज में आना, थोड़ा उसके स्पेसेस कम कर लेना। अब जैसा ये है, ये फॉर्मेलिटी वर्क है, सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, इसको आप फॉन्ट थोड़ा छोटा कर ले सकते हैं, रीडेबल रहना, बट यू हैव reduced द फॉन्ट सो दैट द एंटायर प्रेयर कम्स इन वन पेज। थोड़े स्पेसेस को कम करें आप। देखो आया क्या? नहीं, अभी भी नहीं आया। हाँ, हाँ, इसको अपन, ये फॉर्मेलिटी टेक्स्ट है, उसको अपन मिनिमाइज कर लेंगे और इसको लेफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं क्या, देखेंगे। हाँ, हाँ, थोड़ा सा अपन डॉकेट को बियॉन्ड हाफ पेज ले लिया, बट वो एक पेज में आ सका बिकॉज ऑफ दिस। तो अपन क्या करेंगे, नो स्पेसिस कर लेंगे, नो स्पेसिस, नो स्पेसिंग, देयर इज नो स्पेसिंग, ये हो गया नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग बोले तो बी नेक्स्ट पेज में आना। ये अपना पूरा वर्ड, एमएस वर्ड की कमजोरी है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट को अपन टक टक हैंडल करते रह सके, तो वी विल बी सेविंग दिस टाइम। स्पेसेस कम करेंगे, फिर स्पेस कम करेंगे, फिर स्पेस। चलो एक पेज में आ गया हो। अभी you'll have to send this to the right, क्योंकि डॉकेट पेज है, लेफ्ट साइड पे स्टैम्प्स आता और जो है डेट वगैरह दिए सो वो लिखते कभी कोर्ट वाले। तो उसके अंदर बाटा फॉर्म, बाटा फॉर्म, भत्ता फॉर्म बोल के भी बोलते हैं लोग, उसको कट करके उस पे लगाते हैं कि उस पे एनवेलोप्स के ऊपर। उसके बाद ये निस्सी फॉर्म बोल के बोलते हैं ना, ये रिट पिटीशन में अगर कुछ मिस्टेक पाया गया तो सुबह 10:30 को कल मैं हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने इन पर्सन रिप्रेजेंट करूंगा और उनके क्या डाउट्स है तो क्लैरिफाई करूंगा। अगर उनको ऐसा देखा ये प्रेयर है फिर से इंटरिम प्रेयर, आइए डाले ना अपन 15 रुपये। इंटरिम प्रेयर का डॉकेट, पार्ट ऑफ फॉर्म जो है, फिर डॉकेट, रूटीन डॉकेट, इंटरिम प्रेयर, रेस्पोंडेंट एड्रेसेस कवर में चिपकाने के लिए। ये हो गया आपका, इसको कंट्रोल एस, ये आप अपनी टीम को रिव्यू के लिए भेज देना इफ यू आर हैविंग अ टीम। तो ये अपन मिनिमाइज करें। उसके बाद आएंगे अपन हमारे याकूब भाई के जो इनपुट्स थे कि आर्ग्यूमेंट कैसा करना चाहिए। तो एज पर याकूब भाई स्ट्रेटजी, दो तीन स्ट्रेटजी डिस्कस हो रहे थे, उसमें से जो याकूब भाई बोले कि ये वाला बेहतर है, तो ये था कि जो प्रेयर लिखा हुआ रहता, somebody's in the waiting room, हाँ, तो जो प्रेयर है, प्रेयर को पढ़ेंगे बोल के बोल रहे थे, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, माई लॉर्डशिप में आई बोल के बोलना। तो फिर जज साहब यस बोल के बोलते हैं या नो बोल के बोलते हैं, प्लीज वेट बोल सकते हैं। तो अज्यूम कि जज साहब अपने को बोले यस, so the first respondent willfully and wantedly is not implementing orders of the Honorable High Court passed in so and so, dated so and so, by His Lordship, and deliberately avoiding action of the first respondent, which amounts to punishment under section 10 and 12 of Contempt of Courts Act। यानी कि ये कौन सा केस है, कंटेम्प्ट का केस है। उसके बाद इंटरिम ऑर्डर है या मेन इंटरिम प्रेयर है या मेन प्रेयर का कंटिन्यूशन है।
It is therefore prayed that this honorable court may be pleased to take action against respondent number so and so, not implementing writ petition so and pass such other orders. आप prayer पढ़ने के बाद जज साहब आपको पूछ सकते हैं, ये जैसा कंटेम्प्ट है तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है जनाब, तो आप बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ ऑफ सर्विस, काइंडली कम टू पेज नंबर 29 एंड 34 माय लॉर्डशिप। हाई कोर्ट में आप बात कर रहे हैं तो माय लॉर्डशिप बोलेंगे आप, ट्रायल कोर्ट में बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में माय लॉर्ड भी बोल सकते हैं आप, और ट्रायल कोर्ट में बात कर रहे हैं तो योर ऑनर बोलेंगे आप। तो ये नोटिस है, ये नोटिस का जो है क्या है, रसीद है, पोस्टल रसीद। Kindly come to page number 29 to 32, my lordship. We have posted the notice here. Where is the order? पूछ सकते हो। Kindly come to page number 27 to 28, my lordship. This is the order which was passed, for which we have put the contempt case. तो ये हो गया जैसा कि हमारे याकूब भाई के इनपुट्स थे, आर्ग्यूमेंट इज सपोज टू बी डन लाइक दिस। तो उसके बाद कहाँ गया वो अपना पिछले सेशन का, अपन क्या क्या कवर करें। गुड एडवोकेट बनने के लिए पहले मेंटल प्रिपरेशन, एबिलिटी टू कन्वर्ट क्लाइंट स्टोरी इनटू सेक्शंस, और एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इन द एंटायर डिस्कशन। उसके बाद अपन बात करें सरपंच एडवोकेट। सरपंच एडवोकेट वो है जिसके सामने आके क्लाइंट बैठ रहा, वकालतनामा साइन कर रहा, फीस दे रहा, पेपर दे रहा और ऑर्डर्स लेने के लिए आ रहा। समटाइम्स सरपंच एडवोकेट may himself go and draft, he may type, he may argue, he may give it to others as well. I advise कि अगर आपको ड्राफ्टिंग फाइलिंग आर्ग्यूमेंट नहीं आती तो यू डोंट बिकम अ सरपंच एडवोकेट, यू बिकम अ लेबर एडवोकेट एंड यू लर्न हाउ द ड्राफ्टिंग फाइलिंग आर्ग्यूमेंट इज बीइंग डन। आपको आइडिया होने के बाद देन यू गो फॉर सरपंची, सो दैट इफ द लेबर एडवोकेट इज कंफ्यूज, उनका कुछ डाउट रहा, उन्होंने जो है उस लेट्स कॉल इट अ गेम, उस गेम में कंफ्यूज रहे तो यू विल बी एबल टू गाइड देम। अगर you yourself don't know how drafting, filing, argument, and orders are done, and if you hire somebody for doing that work, you don't know whether he is taking you for a ride. तो आपको नहीं मालूम है तो आप खुद लेबर एडवोकेसी करिए, आपको मालूम होने के बाद यू कैन गो फॉर सरपंच एडवोकेसी। फिर उसके बाद लेबर एडवोकेट का काम क्या है, ड्राफ्टिंग करना, फाइलिंग करना, आर्ग्यूमेंट करना, ऑर्डर बाहर निकालना, तारीख प्रीपोन करना, ऑर्डर लाके सरपंच एडवोकेट के टेबल पे रखना, रख के कुछ बैलेंस प्लस माइनस है तो क्लियर कर देना। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन द कोर्ट, जैसा कि जीरोक्स के हो गए, पार्किंग फीस हो गई, ये सब चीज़ें आप जो है किसी सीनियर एडवोकेट से पर्सनली मिलके क्लैरिफाई कर ले सकते हैं। उसके बाद हो गया चीज टाइम लाइन। ऑन एन एवरेज अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाया हाई कोर्ट केस में तो 3 to 5 years जैसा कि आप बोल रहे थे, और ट्रायल कोर्ट में 5 to 7 years। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के लिए तो अपन जस्ट एक एग्जाम्पल देखे। फाइलिंग, फाइलिंग के लिए जितने पार्टीज हैं उतने जिरोक्स करना, वकालतनामा लगाना, उसको कोर्ट फीस लगाना, वेलफेयर स्टैंप लगाना 105 और दाखिल करना सेक्शन में पूरे जिरोक्सेस के साथ। उसके बाद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में क्या है, प्रेयर पढ़ना और आपका इंडेक्स का पेपर पढ़ना, और उसके बाद क्या है, ऑर्डर पास हो गया, जीतते नहीं तो हारते, ऑर्डर फिर सेक्शन में जाके निकालना, निकाल के लाके सरपंच एडवोकेट को देना कि आप खुद सरपंच है तो क्लाइंट को बुला के देना। तो आई वंस अगेन अपोलोजाइज टू क्लासीफाई एडवोकेसी इनटू कैजुअल टर्म्स। क्लाइंट बोल रहा चीज सो चीज को मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, आई अपोलोजाइज वंस अगेन। जो एडवोकेट के पास क्लाइंट वकालतनामा दे रहा है उसको सरपंच बोल रहा हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। और जो इम्प्लीमेंट कर रहा सो एडवोकेट को फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेबर एडवोकेट, एम्प्लॉई एडवोकेट बोल रहा हूँ, I apologize to my advocate brothers for using these terms. It is not with a negative or derogatory intention. It is with the intention so that the new law students and advocates can understand it in a easier manner and communicate with each other in a simpler way. क्योंकि वन मैन शो वाली वकालत बहुत ज्यादा नहीं है,
लाइक 1-2% लोगों का है वन मैन शो वकालत। क्लाइंट से भी वही बात कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी वही कर रहे हैं, फाइलिंग भी वही कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी वही कर रहे हैं, ऑर्डर भी वही ला रहे हैं। उसमें क्या होगा, he may have time crunch, he may not get time to exercise, he may not get time to, if he's a fan of cooking food, he may not be able to cook tasty food। तो ये सब इश्यूज होते हैं। तो सम पीपल हु आर गुड एट ड्राफ्टिंग, वो ओनली ड्राफ्टिंग पे फोकस कर लेना। सम पीपल हु आर गुड एट फाइलिंग, दे कैन गो फॉर फाइलिंग। सम पीपल आर गुड एट आर्ग्यूइंग, वो लोग आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं, हमारे याकूब भाई के जैसा। सम पीपल हु आर, जो भी आपकी एबिलिटी स्किल के हिसाब से, साल 2 साल 3 साल में आपको आइडिया हो जाता, अरे ड्राफ्टिंग तो मैं यूं मैं कर सका, बेहतरीन ड्राफ्टिंग हुई, आर्ग्यूमेंट तो मैं इतना अच्छा कर सका। यू गेट अ फीडबैक, सेल्फ फीडबैक, जजेस से, ऑर्डर से, सीनियर एडवोकेट से, क्लाइंट से, आपका क्या फीडबैक मिल रहा है, आप कहाँ पे फिट हो रहे। डोंट डू 100 थिंग्स विथ नॉन परफेक्शन, डू ओनली 1 or 2 थिंग्स विथ परफेक्शन एंड कॉस्ट इफेक्टिविटी। दैट वे you'll be beneficial to yourself, your family, society and the nation at large। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। कुछ अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। वो कौन 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 है ऐड हुए हुए, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या कुछ डाउट है, शैल वी क्लोज इट। हेलो। हाँ हेलो, हाउ आर यू। सोनू मूसा भाई, हाँ, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। कैसे हैं आप। वीकेंड वीकेंड, आई एम वीकेंड ग्रीटिंग। अपना ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मूसा भाई, अब ये एकदम वेरी शॉर्ट नोटिस पे बोले। जी जी जी। सर संडे संडे का आइडिया अच्छा बोले आप। विल कंटिन्यू, आपके पास जो स्टूडेंट्स दे आर accumulating, मेरे पास उनके लिए फार। ऑलमोस्ट जी जी। आई हैव 20 स्टूडेंट्स है इंटर्नशिप के लिए। Nice। आप क्या कर, अरोरा कॉलेज, छोटा बड़ा। अरोरा कॉलेज, बासरी कॉलेज। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या है, लाइक ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बोलते, क्या है थियरिटिकल बोल देते, बट दे डोंट यूज द प्रैक्टिकल नॉलेज। करेक्ट बोले आप। तो अगर आप वक्त निकाले, अगर आप ये ओपन करें, तो क्या है, लाइक अपना भी एक सर्विस टू द कम्युनिटी हो जाता। आई एग्री। अपन क्या करेंगे, आप छोटा एक आपके क्लासरूम में, ऑफिस में स्पीकर रख लेंगे, थोड़ा बड़ा स्क्रीन अगर दे सके, बच्चे स्क्रीन के करीब बैठ गए, मैं क्योंकि जूम 45 मिनट। जूम पे है, जूम पे है। और जूम पे बस 45 मिनट्स ही वाला। ऑनलाइन ही ले रहा हूँ पूरे क्लासेस। मैं नहीं ले रहे। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर ऑनलाइन है। आप मेरे को लिंक भेज दो, क्या मैं आपको लिंक भेज दूँ, एक 45 मिनट्स बीच में मैं। जूम की लिंक क्रिएट कर दिया हमें इंटरवल के। तो अगर आप एक आज अगर आप दे सकते हैं या टाइम, या नेक्स्ट संडे या फ्राइडे के दिन शाम में। और आज क्या टाइम से क्या टाइम तक है ये लोग की क्लास। 2 to 3:30 है। ठीक है, तो उसमें 3:10 to 3:20 ले लेता हूँ। मैं पहली बार है ना, 10 मिनट का लेके एंड कर देता हूँ। मैं 1 घंटा क्लास, मैं 1 घंटा ले लेता हूँ, उसमें 3 सेशन करता हूँ मैं। अच्छा ओके। उसमें उसमें जूम का जो 40 मिनट सेशन है, उसमें 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट बांट देता हूँ मैं। उसमें आप अगर आप 3 to 3:10 या 3:15 15 20 मिनट्स अगर आप बोल दिए, बेसिक कैसा रहता है, आइडिया क्या है, तो इट विल बी अ गेस्ट लेक्चर फॉर देम। बीच का सेशन मेरे को दे दो, ताकि स्टार्टिंग में आप इंट्रो दे सकना, एंडिंग में आप कंक्लूजन दे सकना। अच्छा, तो फिर 2 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं, 2:30 को मैं फर्स्ट सेशन इंट्रो खत्म हो जाता। फिर एज ए सरप्राइज बोल के मैं 2:30 से आप स्टार्ट कर दे सकते हैं। तो आप जितना भी कैसा भी आपका टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना भी लिए फिर उसका ना, फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, 1 आवर है एग्जैक्ट, विल डू इट। तो अगर आप, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, हाँ या आपको पर्सनली कर देता हूँ, या कोई भी अटेंड करना चाह रहे तो अटेंड कर ले सकते हैं। ठीक है, डन डन। आप ज्वाइन हो जाइए। ओके। मैं आज इन लोगों को नोटिस पढ़ाने वाला था। अच्छा, नोटिस का टॉपिक है, ठीक है ठीक है, नोटिस। लीगल नोटिस। ओके ओके। एक शुरू में जब हाफ एन आवर है, तो मैं बेसिक जो नोटिस है, क्या जरूरत है, कैसा है, क्या है, वो मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब सीनियर एडवोकेट बोल के बता दे सकता ठीक है।
नोटिस का। डन। ठीक है ना, 2:30 को मैं इंशाल्लाह आपको मैं टू लिंक भेजा देता हूँ, 2:30 को आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा भाई, लॉग इन कर लीजिए बोल के। डन हो जाता है। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अरे मुसा भाई, वो सॉफ्टवेयर है या कैसा है? अब अभी जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे। स्क्रीन शेयर तो जूम में हुआ, जो मैं हाँ, ड्राफ्टिंग में यूज कर रहा हूँ उसका नाम है तुम्मा जी। मैं आपको नंबर भेजता हूँ और ये अपने स्टूडेंट से डेवलप करे सो है क्या? क्या क्या ये अपने स्टूडेंट से डेवलप करे क्या ये सॉफ्टवेयर? स्टूडेंट्स का अभी आने वाला है। ये हाँ, 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इन्होंने बनारस वाले हाई कोर्ट में काम करते। अच्छा। नहीं, वही सॉफ्टवेयर में देखा था, पर इसका यूज नहीं देखा था कभी भी, है बोल के मालूम था। नहीं मालूम होना यूज, चलो अच्छा है। वैसे बहुत से है ऑनलाइन, मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका नंबर ये है। 5000 में दे रहे हो नो, और लाइफ टाइम है। आपका सिस्टम क्रैश हुआ, री इंस्टॉल करे तो जब फिर कुछ अमाउंट ले रहे हो विच इज लेस देन 5। आपका कंप्यूटर अच्छा। ड्राफ्टिंग का मार्केट रेट 3000 रुपये चल रहा है। ना, वो तो स्टैंडर्ड रेट है वो। 1.5 ड्राफ्टिंग इसे सॉफ्टवेयर पढ़ रहा हूँ। It will no way guide you what should be the prayer. It will no way guide you what is the affidavit. It will not guide you about the sections. It will guide you कहाँ पे आना, इंटरिम द प्रेयर, स्ट्रक्चर। हाँ, एफिडेविट कहाँ पे आना, एनेक्सर कहाँ पे आना। द स्टोरी पार्ट ऑफ इट यू विल हैव टू गिव। इट्स लाइक अ खाने खाने रहते नहीं वो, मसालों के डब्बे में खाने छोटे छोटे रहते, उसमें मिर्ची नमक रख लो, तो इट्स ओनली गिविंग यू द फॉर्मेट। अच्छा, वही तो मेजर मेजर लैकिंग वही है। कंटेंट अपने को मालूम है, बट जो स्ट्रक्चर अपने को नहीं आया तो वो तो हेल्पफुल एक एड हो जाता है, हेल्प हो जाता इट्स लॉ स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आफ्टर 5 years 10 years के बाद तो विल नॉट, whether you have the software or not won't make a difference। स्टार्टिंग में 3 years वकालत लॉ स्टूडेंट्स फ्रेश एडवोकेट्स, उनको मेन प्रॉब्लम फॉर्मेट्स का हो रहा। सो इफ दे हैव इट इन दैट वे, 1 सेकंड में एंड हो रहा। कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे है। याकूब भाई, वही भाई। थैंक यू मुसाब भाई। सब जो है प्रैक्टिकल भी एक एक चीज खोल के रखने के लिए, हर चीज थियोरेटिकली पढ़ते, जो भी तकरीबन लोग हैं जो प्रैक्टिकल